لاہور. لاہور سے ہے. مومن ہے جی نا؟ جی مومن ہوں, ٹینشن نہ لیں. کوئی سورہ ذرا سنا دے. کون سی سورت سناؤں؟ مجھے چھوٹی والی آتی ہیں, کوئی سنا دوں ایک. ہاں سنا دو سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ہو گیا ماش یقین؟ ماشاء اللہ یقین ہو گیا. بہت زبردست. اچھا شکریہ. ایان، کون سے فرقے سے یا کون سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ ایکچولی میری فیملی کی ایک سائڈ وہابی ہے اور دوسری سائڈ بریلوی ہے. اچھا، ایک وہابی اور ایک بریلوی، اور آپ بیچ کے ہیں. ہاں میں دونوں کا ہی نہیں ہوں. آپ دونوں میں نہیں ہے، آپ بیچ میں ہے نا. ہم سمجھ گئے تھے آپ بیچ میں ہیں. نہیں بیچ میں نہیں, میں دونوں میں ہی نہیں ہوں. ہاں تو میں مطلب نے آج تک دونوں کسی میں. کا بیٹ نہیں دیا, میں نے آج تک کسی ماں کے پیچھے نہیں چلا نہ. میں بس جنرل نارمل سے نمازی آدمی ہوں بس. اچھا اچھا. اسلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اسلام جنرلی اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, فاسٹ کر لیتے ہیں, تو کوئی مسئلے ہوں. والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنا سوشل اوپینین, اپنا جو ریڈیکلزم ہے وہ دوسروں پر امپوز کرتے ہیں, پھر مسئلہ آ جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر دوسروں وہ کا سر تن سے جدا ایان بھائی، اگر وہ ریڈیکلزم پارٹ آف اسلام ہے تب بھائی جان دیکھیں نا, آج کل اب کہیں نہ کہیں آپ کو بھی میانہ روی کے ساتھ چل لینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک نان مسلم پر بھی آپ اپنا حکم تھوپ کر چل لیں گے تو غلط فہمی ہے. آج کل سارے مسلم چاٹتے ہیں یو ایس اے کو. ایان بھائی اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ جی آپ نے کہا کہ کوئی تھوپ نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں ریڈیکلزم، میں کہہ رہا ہوں ریڈیکلزم اگر اسلام کا حصہ ہے تو آپ اس کو غلط مانیں گے؟ ہاں دیکھیں, جو بھی چیز ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں میں اس کو اپوز کرتا ہوں. اب ہم اسے پکا کرو ڈائریکٹلی گے؟ تو ایکسپیکٹ نہ کریں. پکا کرو گے ایکسپوز؟ چلے کریں گے, آپ دکھائیں مجھے, اپوز میں آپ کو اپوز کیوں. سوری. آئی ایم ناٹ اے ہپوکریٹ. ماشاء اللہ بہت زبردست. یہ ہوتی ہے بھائی، یہ ہوتی ہے بات. اچھا مجھے بتائیے کہ ایان بھائی، کیا جی آپ کو اپنا ریلیجن کسی پہ فورس کرنا چاہیے؟ نہیں, میں نے آج تک خود کا بھی نہیں کیا. اور کیا آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم آپ سے لڑائی کرتے رہیں گے اور آپ کا جان و مال جو ہے وہ ہم سے سیف نہیں رہے گا؟ جب آپ اسلام قبول کرو گے تو ہی آپ کا جان و مال سیف ہے. بھائی جان یہ تو انسانیت کے اصول میں یا پھر دنیا میں کہیں بھی آج کے دن غلط ہی تصور کیا جاتا ہے. وہ جو یورپ کے ماشاء اللہ. بادشاہوں کے دور تھے, کروسیڈز کا دور تھا, اس دور میں چلتا تھا, آج کل نہیں چلتا. اوکے، دیکھیے اسکرین پہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی. میں حوالہ بھی آپ کو بول دیتا ہوں. جی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3929، صحیح حدیث ہے. کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا. اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا، پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. ہاں جی, اب اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں اب آپ کو. اچھا اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں پہلے پھر بعد میں نہیں وجہ نہیں, بتائیں؟ میں نے یہ نہیں کہہ رہا, میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کیا اوپینین ہے اس بارے میں. نہیں وہ آپ اوپینین بتانا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. اب یہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے یہ صحیح ہے غلط ہے آپ کی نظر میں؟ جب میں نے پہلے ہی غلط کہہ دیا تو میں اب بھی غلط کہوں گا. ایز آئی سیڈ آئی ایم ناٹ اے ماشاء ہپوکریٹ. اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ایان صاحب کے لیے گلاب بھیجو یار. انہوں نے حدیث دیکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ غلط ہے. جی ابھی آپ اپنا اوپینین رکھیں. انمیوٹ کر کے اوپینین رکھے اپنا.
جی हाँ बोलिए, अभी ओपिनियन रखे आप. देखिए मेरा ये मानना है, क्या अब अगर आप किसी के कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स किसी को मारता है, किसी के फैमिली मेंबर को, अब जो मरने वाला है अगर वो हिंदू है और मारने वाला मुस्लिम है, तो क्या मैं उस मुस्लिम के खून को हलाल कह सकता हूँ, हराम कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, मुस्लिम को सजा देनी चाहिए अगर वो गलत है। ये बात तो कहीं से वेरीफाई नहीं हो सकती ना, जो गलत है उसको सजा दी जाए, ये तो जस्टिस भी कहता है। तो अभी रसूलुल्लाह को फिर क्या सजा दी जाए? जो रसूलुल्लाह इधर खून खून वीन की बात कर रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं, लड़ाई की भाईजान बात कर रहे भाईजान हैं. बस कर दे, मैदा कमजोर है, मैदा कमजोर है, इतनी नहीं जलेबियां हजम होती, बस कर दे। हाँ, इतनी जलेबियां हजम नहीं होती भाईजान, बस कर दें, बस कर दें आराम से, मतलब मैंने आपको जलेबी. कह तो दिया गलत है। तो भाई फिर इस्लाम में क्यों हो आप? अगर जब आपने रसूलुल्लाह के टीचिंग को, उनके तरीके को अगर आपने गलत कह दिया, तो आप इस्लाम में है ही क्यों फिर? ये तो हिपोक्रेसी है भाईजान आपकी. एक चीज को आप गलत भी समझ रहे हो और उसमें हो भी. देखिए देखिए, मेरी नजर में बेसिकली बात ये है कि अगर मैं रोजा, बेसिक 5 क्यों पिलर्स होते हैं, रखना है? नमाज, रोजा, सुने सुने, किसको? बात सुननी पड़ेगी आपको। अच्छा बोलिए, बोलिए मेरे नमाज, रोजा, भाई. ज़कात, हज रख लेता हूँ, वो सब कर लेता हूँ बेसिक चीजें, तो उसके बाद ये मैं बेसिक मुस्लिम तो हो गया ना। बाद में थोपना, कत्लो गारत करना, वो तो बात की चीज है, वो हमारे पुलाव बनाने वाले मौलवी साहब देखते हैं, वो मेरा काम नहीं है। अयान भाई, लेकिन जब आप रसूलुल्लाह को गलत मान रहे हैं तो आप मुसलमान रहे ही नहीं ना. प्रॉब्लम ये है. भाईजान क्योंकि भाईजान मैं आप पूरी देखिए, तरह अब अयान भाई सुनिए मेरी बात. अल्लाह कुरान में कहता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल. अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो. लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है. अब देखिए कि जब आप रसूलुल्लाह की जिंदगी को बेहतरीन नमूना नहीं मान रहे और आप इनको गलत समझ रहे हैं, तो आप कुरान के अगेंस्ट गए. जो कुरान के अगेंस्ट गया वो मुसलमान कैसे हो सकता है मेरे भाई? तो ये झूठी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो आप? निकल जाओ ना इससे बाहर. भाईजान चले, अभी तो मेरा वैसे कोई इरादा नहीं है इस्लाम छोड़ने का, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इरादे वाले शख्स से मिले और लेकिन वो आपको अभी आप बताया कि थोड़ी वो देर लाहौर, पहले, नहीं बात सुन ना, अयान भाई बस एक सुनो तो मुकम्मल सही करने मेरी दिया बात, करिए मैं आपको भाईजान। मौका दूंगा. अभी आप जब जुड़े थे, जब बात स्टार्ट हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं. कहा था ना बिल्कुल, आपने, हाँ ऑन रिकॉर्ड है. जी तो फिर जी। आप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि मेरा इरादा भी छोड़ने का नहीं है? अभी तो फिर आप हिपोक्रेट हो गए. हाँ, नहीं भाईजान चले, ठीक है, ठीक है, चले, एक सेकंड, आप मुझे हिपोक्रेट कह दे, लेकिन मेरी दूसरी बात सुनिए अब आप। हाँ. अब मेरा तो वैसे अभी इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इरादे वाले बंदे से कहें और वो आपको बताया कि वो लाहौर में है, तो अब आप जरा सोच लें कि लाहौर में इस्लाम छोड़ने वाले के साथ क्या होता है। माशाल्लाह, लाहौर, चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मेरे तो इरादा नहीं, गाइस, लेकिन मैंने आपको बताया है सिर्फ कि लाहौर ठीक में है, आपको पता है कैसे कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, कोई नहीं. ये आपका रियल नाम तो नहीं है ना? हाँ, आधा चप्पा है, आधा चप्पा नहीं है, आप टेंशन ना लें। अच्छा चलिए. तो रियल नाम नहीं है तो आपको कोई इशू नहीं होगा. हम ये नहीं कह रहे कि अभी आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो वहां पे जाके आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ढोल नगाड़ा निकाल के और वो शहनाई के साथ सबको बताए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, भाई मैंने रसूलुल्लाह नहीं की छोड़ा, बात पूरी गलत है. स्टेटमेंट तो ऐसे तो ना जारी कर दो ना यार मुझ पे, आप फतवा तो जारी ना करो मुझ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अयान भाई कि आपने जो गलत है उसको गलत माना, और हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं. और आप हमारी स्ट्रीम और हमारे वीडियोस देखते रहें ताकि मजीद जो हमने बाकी टॉपिक्स कवर किए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक चीज पे ही आपको गलत नजर आया और आपने एक राय बना ली, बल्कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हमने ये यहाँ पे साबित किया है कि रसूलुल्लाह जो है, रसूल तो दूर की बात, एक अच्छे इंसान भी नजर नहीं आते. और इस्लाम इंसानियत के लिए कभी एक अच्छा मजहब, एक अच्छा रिलीजन नहीं हो सकता. बहुत शुक्रिया अयान भाई. ठीक है, मैं इजाजत लूंगा, अगर आपको कोई आगे मिले तो वो आपको जलेबियां दे तो खा लीजिएगा, आपने खाना भी नहीं खाया हुआ, आगे जलेबियों का इंतजार करें, चलिए, कुछ बहुत पुलाव भी जबरदस्त. आएंगे साथ में। जी, वो पुलाव, अगर कोई जलेबी पुलाव हमारे सामने बनाएगा ना तो वो जलेबी उनकी हम सीधी कर देंगे. नहीं भाई, खा लिया करे, अच्छा होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। हम आपको एंटी मुझसे नहीं मिलने जलेबी है, वाला। जलेबी हमें बर्दाश्त नहीं होती है. अच्छा अच्छा, ठीक है, शुगर है, ठीक है, बाय। चलिए, बाय बाय.
یار دیکھیے ہمارے ایان بھائی جو ہے ینگ ہے ابھی، اور واقعی میں ان کے اندر انسانیت ہے، جو انہوں نے غلط کو غلط کہا، تو میں سلوٹ کرتا ہوں ایان کو. لیکن پرابلم یہ ہے ایان کے ساتھ کہ ایان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایان پاکستان میں ہے تو کھل کے وہ نہیں آ سکتا. لیکن ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایان جیسے کئی سارے لوگ اگر دل سے بھی اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے جو جنریشن آئے گی ان کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا. اور جب موقع ملے گا، جب ہو سکتا ہے کہ اور ہمارے لالا جی بھی موجود ہے، امام مرتد، کہہ رہے واللہ یہ ایکس مسلم ہے دل سے. جی بالکل دل سے ایکس مسلم ہے ہمارا ایان بھائی. تو آگے بڑھتے ہیں گائز، اور آپ لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 1700 لوگ جو جڑے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے تاکہ کئی سارے ایان ہم پیدا کر سکیں اس ڈسکشن، اس ڈیبیٹ اور اس اسٹریم کے مادھیم سے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. کچھ ہمارے ساتھ اور بھی مومن حضرات ہیں. جے گارڈن صاحب میں آپ کو لیتا ہوں، صرف تھوڑا موقع مجھے دینا. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی مومن بھائی صرف 1 منٹ آپ میوٹ کریے گا، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. صرف 1 منٹ میوٹ کریے آپ. مہیش جی کہہ رہے ہیں مومنزم یہ اچھا ہے کہ لونڈی رکھ سکتے ہو، 4 شادی کر سکتے ہو، کسی کو بھی بلاسفمی ڈال کے مار سکتے ہیں. مومنزم اس لیے رکھا کہ اسلام لکھا تو میسج نہیں، یوٹیوب ٹرائی اگین بول رہا ہے. ارے بھائی یوٹیوب بھی پگلا گیا ہے ایکچولی. مفتی ایکس مسلم کہہ رہے ہیں 5 AM ان نیوزی لینڈ. بھائی ڈیڈیکیٹڈ ہوں میں. ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ مفتی ایکس مسلم صاحب آپ کے ڈیڈیکیشن کے لیے. آئی ایم گڈ. پورنبا دیو جی کہہ رہے ہیں پائے لاگو آپ کو بھی پورنبا دیو جی، اینڈ تھینک یو فار یور سپر چیٹ. جی ہمارے کیا نام ہے ان کا، مومن بھائی انمیوٹ کر لیجئے آپ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ایک دم صحیح ہوں. ایک دم جی صحیح ہے. ہاں اچھا جی میں یار نا یہ، ہاں 1 منٹ. ہاں بھائی یہ کراؤن پرنس سلمان بھائی اور انسان صاحب اگر آپ نان مومن ہیں تو پلیز اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے، فل نہیں کرے بھائی، ہمارے مومن بھائیوں کو بولنے کا موقع دے. مومن ہے کراؤن پرنس سلمان صاحب، مومن رہے ہیں لیکن ابھی ایکس مسلم ہے. اچھا اور یہ انسان صاحب؟ انسان صاحب نان مومن. اچھا انسان صاحب ہمیں آج انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مومنوں کی ضرورت ہے. ہاں مومن بھائی، سر مومن ہیں آپ؟ جی بالکل. کوئی سورہ وغیرہ سنا سکتے ہیں؟ جی بالکل سنا سکتے. کون سی سناؤ گے؟ 30ویں پاری کی سنا دوں؟ نہیں تو 29ویں. ارے دل خوش کر دیے، سناؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ہاں جی اب اس کے آگے آپ بتائیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. پورا تو کر لیتے میرے بھائی. جی اس کا نام کیا ہے سورے کا؟ کون سا تھا پھر سے بولو ذرا، میں نام بتاتا ہوں ارے آپ کو. کیا بات کر، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ ارے سب معلوم چلیے ہے، اسی لیے چھوڑیے. بول رہا ہوں. سورہ کا سٹارٹنگ پھر سے پڑھو، میں ابھی آپ کو نام بتاتا ہوں. اچھا اسٹارٹنگ سے نام بتاتے ہو آپ؟ ہاں پڑھو تو صحیح. هو اللہ الذی، یہ کون سے پارے میں لکھا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو ہو. اللہ یہ تو الذی بہت لا آسان. الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. کون سے پارے میں یہ؟ هو اللہ الخالق البارئ بس بس بس. المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ حشر جی کی لاسٹ کی آیت ہے یہ غالباً، اگر میں رانگ نہیں ہوں. جی چلیے ابھی اتنا چلیے. تو ثابت ہو گیا. ارے یہ دیکھیں لوگ ہضم نہیں کر پا رہے. کوئی نہیں. تو مومن بھائی کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ جی وہ تو ایسا تو میں مسلم ہی ہوں. آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے؟
अरे मैं मोमिन, मैं मुसलमान ही नहीं हूँ तो किस मसलक की बात कहाँ हाँ, से तो आएगी? कौन जब सी मोमिन आइडियोलॉजी होता को फॉलो कर रहे हैं आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो है, मेरे इस से बात से फर्क ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, पड़ता मेरे है। से फर्क नहीं पड़ता। आप क्या अपने नहीं से फर्क बातें पड़ता? करने डरते हैं। क्या? चलिए अब आ जाइए। अच्छा चलिए ये बताइए कि इस्लाम में इंसानियत है जी बिल्कुल है, सभी इंसानियत से लोगों के लिए? बढ़कर। जी। अच्छा ये बात अच्छा बताइए, तो ये झूठ बोलना सही बात है क्या गलत बात है? क्या बोल रहे हो? झूठ बोलना सही बात है क्या गलत बात है? आपके हिसाब से सही है या गलत है? झूठ। सही है या गलत है आपके हेलो हिसाब से? हेलो, मेरी आवाज अटक रही है क्या? आपके आपकी आवाज आ रही है मेरे भाई, आपके अंदर का इंटरनेट का ईमान जाग चुका है। जी थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी आ रही आवाज? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी। झूठ बोलना अच्छा सही ये बात है या बताओ, गलत बात है? नहीं झूठ बोलना जो है वो आमतौर पे गलत माना जाता है। अच्छा मतलब कोई टाइम पे सही भी माना जाता है? हाँ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जैसे कि हाँ एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सपोज करने पे किसी को एक्सपोज करने के लिए झूठ बोलना गलत है। गलत है, तो आप तो वही काम कर चुके। हाँ तो आप मेरे को गलत साबित करिए ना, बताइए कि इस्लाम में इंसानियत जी कैसे? मैंने ना आपकी वीडियो में। रसूलुल्लाह आपके सामने एक हदीस है, मेरी बात सुनिए, आपके सामने एक हाँ हाँ हदीस उस है पे तो मैं आई सुनन हूँ। इब्ने, एक मिनट मेरे भाई, जज्बाती नहीं होना है आपको, ठीक है बिल्कुल मोमिन भाई? बिल्कुल नहीं है। हाँ आपके सामने एक हदीस है, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे, अगर वो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब उनका खून और माल जो है वो मुझ पे हराम है। ये कैसा आपका इस्लाम है, ये कैसा आपका नबी है जो इस्लाम ना कबूल करने पे सामने वाले की जान का दुश्मन बन चुका है? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अब आ जाइए, तो अब आपने क्या बोला उस पर? एक मिनट, आपने ना, अगर मैं आपकी वीडियो दीन देख में रहा था। एक मिनट मेरे भाई आराम से, अगर दीन में जबरदस्ती नहीं है तो ये रसूलुल्लाह ने ये इतना भारी स्टेटमेंट क्यों मारा है? जी उस पर मैं आ रहा हूँ ना, मगर आपके स्टेटमेंट भी बहुत भारी एक बार आपने दे चुके, उस पर आ जाता हूँ। आपने ये हाँ कहा था कि ना, कई बार कह चुके कि हजरत अबू बकर ने ना गाली ली है। क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ, वहां जाएंगे जी पहले, इस बताइए। पे ये चीज पहले हो जाए फिर मैं वहां भी चले जाऊंगा आपके साथ, कोई मुश्किल नहीं। जी इसका मैंने जवाब दे दिया हूँ, मगर आप इसका दे देंगे तो बहुत आप अच्छा हो ये जाएगा। आप जो कहेंगे अरे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो कहूंगा वो करोगे? जी अगर आप प्रूफ कर देंगे, प्रूफ हाँ, कि हजरत अबू बकर ने गाली दी थी। चलिए तो आपको हदीस भी नहीं याद है? जो करने कहूंगा वो कहोगे, करोगे? हाँ करूंगा मैं, पॉसिबल रहेगा तो, ऐसा नहीं कि ना आप बोलेंगे ये कर वो कर, यहाँ पे आ जा। हे साहिल, सॉरी आई हैड टू जंप इन, मुझे जबरदस्ती जंप इन करना पड़ा इस डंगर की वजह से। ये डंगर मेरे चैनल पे आया था या पता नहीं किसी और चैनल पे आया था जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, इसने यही बात कही थी और अभी तक इसने रेफरेंस नहीं दिया, जो कि इसको मैंने चैलेंज किया था कि जाके रेफरेंस लेके आओ। उस टाइम पे ये तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा बैक स्टेज में बैठा रहा है, प्रॉबेबली मेरा चैनल ही था, और जी रेफरेंस उसने ये लेके आना था, वो रेफरेंस लेके आया। तुम्हें पता है तुम्हें होमवर्क क्या दिया था? सॉरी साहिल मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई इसकी नहीं डंगर की आवाज जो है ना प्लीज कंटिन्यू एडम, वो प्लीज आ गई थी। कंटिन्यू, प्लीज हाँ वो कंटिन्यू। रेफरेंस लेके आए सर, रेफरेंस लेके आए हैं? जी लेके आइए। दिखाएं सर, स्क्रीन पे ले आए सर। आपका होमवर्क जो था, जो आप 45 मिनट बैक स्टेज में बैठे रहे और होमवर्क नहीं किया, वो लेके आए हैं। आज आप साहिल के साथ वही बात खोल रहे हैं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के। तो वो रेफरेंस कहाँ है? जी इन्होंने कि झूठ बांधा है, वही बता रहा हूँ। एक मिनट, हाँ मेरा जी फोन हेलो आया, हेलो, बस 2 वो मिनट। झूठ पहले मैंने बांधा था, अब साहिल ने बांधा है, उसका रेफरेंस दें आप फटाफट प्लीज। जी रेफरेंस आप देंगे, हम खोलें या आप खुद अपनी स्क्रीन से दिखाएंगे? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। झूठों से नफरत है मुझे, इस्लाम में झूठ बोलना जी तम्मक हलाल है। फिर से बोलिएगा, क्या बोले आपने? आप वो रेफरेंस दें सर। क्या चीज का? आपने जो मेरे साथ लास्ट टाइम बात की थी, मुझे रेफरेंस दें 2 मिनट, हाँ जहाँ मेरा पे फोन आया। यार क्या भी अरे आए क्यों क्या यार, इंसान है यार। आए क्यों यहाँ पे? चलिए टॉपिक भी जब चेंज तक किया, सब कुछ चेंज किया, और फिर मेरा फोन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है इसका। यार ये साहिल क्या चलिए बंदा है? जब तक ये बंदा रिटर्न आता है हम
इस्तकबाल इस भाई की वजह से नहीं कर पाए थे, तो मैं अभी इस्तकबाल कर देता हूँ हमारे इमाम मुर्तदीन, इमाम आजम एडम जी, सिकदर आवाज का आ रही है? इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे आवाज भी आ गई थैंक यू इनकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई, किधर है सर रेफरेंस आपका? जी बताइएगा, अच्छा, इसमें जरा रेफरेंस उन्होंने देना गाली क्या दी था है। एडम, एक बार वो भी बता देते तो आसानी हो जाती। क्या रेफरेंस नहीं देना सर, था इसको इनको? इसको पता होना चाहिए कि इसने लास्ट टाइम होमवर्क क्या लिया। इसने मेरे 15-20 मिनट मेरी लास्ट स्ट्रीम में इसने जाया किए थे। मोमिन तुमने भाई लास्ट आपको याद टाइम है? बिल्कुल नहीं, आपने 2 मिनट में बता दिया, आप फंस गए। तो आप जब फंस गए 2 मिनट में मेरे को अच्छा, भगा मैं दिया। मैं फंस गया जी, मैं फंस गया सरकार। तो आपको जो मैंने बोला था वो आप ले आए हैं आज? जी, कौन सा वाला? यार क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले आप लास्ट टाइम मैंने होमवर्क क्या दिया था तुम्हें? आपने जो हजरत अबू बकर का झूठा इल्जाम लगाया उस पर आ जाइए। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें होमवर्क के लिए क्या दिया था? तुमने जो मुद्दा क्या दिया प्रेजेंट था? किया था उसके बेस में मैंने होमवर्क क्या दिया था तुम्हें? कौन सा वाला? मेरे को याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। तुमने मुझे होमवर्क ये आपसे ला तो के शायद देना मेरा था, दूसरा इंटरेक्ट। तुमने मुझे होमवर्क ये ला के देना था कि उस जमाने में मुशरिकीन जो थे, पेगन्स जो थे, मुशरिकीन जो थे, वो अल्लाह की चूत को जाके चाटा करते थे। ये आपने हाय रेफरेंस हाय लिखा। हाय हाय। उफ उफ। जी, तो गाली देना गलत बात है। हेलो, गाली को छोड़ आपके देना, हिसाब हम आगे चले गए थे। आपने बताया था आपने कि भी अबू, कहा, आपने भी तो सुने, दे दिया। हेलो हेलो सुनो, आपने बताया था कि जो अबू बकर ने बुखारी की हदीस के अंदर इनको कहा था कि जाओ जाके अल्लाह की चू को चाटो। ये गाली जी। इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मुशरिकीन अपने भगवानों की चू को चाटते होते थे। ये आपका आर्गुमेंट था, राइट? जी बिल्कुल, जी ओके, बिल्कुल। मैंने आपको कहा था जनाब इस चीज का रेफरेंस लेके आए ताकि हमें पता लगे कि उस जमाने में मुशरिकीन अल्लाह की चू को चाटा करते थे। वो रेफरेंस कहाँ है? बहुत सिंपल है, अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना हजरत ना अबू बकर भी हेलो, नहीं बोले वो होते। रेफरेंस कहाँ है? बहुत assumption सिंपल सी बात नहीं है। assumption नहीं, assumption नहीं। अगर वो नहीं चाहते तो हजरत अबू बकर भी नहीं बोले होते। तो अबू बकर ने गाली दी थी, कुत्ता था वो, गाली देता था, उसने तुम गाली डॉगी दी। हो भाई, तुम भी तो 2 बार गाली दी, तुम भी तो फिर डॉगी निकले। मेरी बात सुन रहे हो मेरे भाई? हेलो, अच्छा, तुमने एक क्या मिनट, किया? एक मिनट, मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ एडम। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर अबू बकर कह रहे हैं कि जाके तुम अपनी लात की शर्मगाह को चाटो, तो वो इसलिए बिल्कुल। कह रहे थे, हाँ इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो लोग चाटते थे। मुझे ये बताओ, जी, कोई बिल्कुल। तुमको कोई अगर ये गाली देता है तुम मादर चोदो, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। कभी कभार ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है स्ट्रीम में ताकि लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अच्छा, क्या नाम है इसका, मोमिन भाई, अगर तुमको गाली कोई देता है तुम मादर चोदो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी माँ के साथ जो है सेक्स करते हो, इस वजह से गाली दी गई थी तुमको? जी बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट फिर डिस्ट्रॉय हो गया। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर अबू तो बकर तुम्हारा ने ये भी कहा, डिस्ट्रॉय हो गया। सुनिए, हाँ? अगर वो नहीं चाहते हैं तो हजरत अबू बकर भी नहीं बोले होते, तो समझे? तुम भी और अपनी अब आ माँ के जाओ, साथ अगर सेक्स नहीं करते हो, अगर नहीं करते तो मेरे होते को तो कोई किससे तुमको देखा? मादर चोद नहीं बोलता। बिल्कुल नहीं, तो लेके आओ फिर प्रूफ, मैं उससे बोलूंगा। यही तो तूने दे दे, यही प्रूफ तो तुझसे मांगा कमीने। वो लोग साहिल यार, वैसे साहिल तू खुल्ला कमाल पकड़ता है यार, लव यू, क्या कमाल तू जो एग्जांपल देता है यार। सॉरी गाइस, रियली सॉरी, 12 बजा नहीं है लेकिन क्या करें, आई एम रियली सॉरी। गया है ईमान जाके, अल्लाह इसके इंटरनेट को खत्म कर रहा है ताकि ये जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? सोचो, कट रही है भाई आपकी आवाज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है, बोलो। मेरे जवाब सुनने का भी करेज रखिए थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ, खा भी ली है, अब तू खा। वो लोग है ना, जब अपने भगवान के करते थे तो ये पब्लिकली करते थे, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चला होता। और इसकी मिसाल जी, इसकी मिसाल आज भी हमें पब्लिकली मिलती है। कितने लोग अकीदत के अंधे में आके पूरा अपने कपड़े उतार आज की नहीं, तब की दिखा। तब की खुद हदीस है, अगर वो नहीं कर रहे थे तो हजरत अबू बकर भी नहीं बोले होते। तो वो समझ रहे हैं? मूर्तियां बनाते थे,
और उससे उन लोगों का अकीदा क्या था बताओ, इससे हमारी सेक्सुअल स्ट्रेंथ। अच्छा सबक है। साहिल मैं सॉरी अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा ताकि मैं आपको दिखा बिल्कुल। सकूं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। देखें ये अरे इनके सॉरी। इस्लामिक लोग हैं साहिल भाई। अब इस्लामिक लोग क्या कह रहे हैं, एंड अबू बकर अब्यूज्ड हिम। हाँ उन्होंने ये नहीं लिखा, यहाँ पे गाली नहीं लिखी कि गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह, क्योंकि अगर हम इसको हाँ, इंग्लिश में वो खुद ट्रांसलेट शर्मा करेंगे, गए। हाँ अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो दैट सेज गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह, ठीक है। उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं की है, उन्होंने ट्रांसलेशन की है अबू बकर अब्यूज्ड हिम। सो वो गाली थी, अब्यूज मींस गाली देना, ठीक है। तो अबू बकर अब्यूज्ड हिम, अबू बकर ने गाली दी। अंग्रेजी में गाली देना एक बेसिकली सिंपल टर्मिनोलॉजी के अंदर कहा जाता है अब्यूज करना। अबू बकर अब्यूज्ड हिम। अच्छा ना प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। मैंने इसको लास्ट टाइम भी यही कहा था और ये यही जलेबी घुमा रहा था बार बार, और मैं से कहा था भाई हेलो, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो एक अपने किसी भगवान की मूर्ति बनाए, ठीक है, मूर्ति बना के उसकी चू को चाटना शुरू कर दे। दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स लाइक आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्चुअली डू दैट। आप ये जरूर कर सकते हैं शायद कि कोई लेडीज आए, जैसा कि करती थी काबा के अंदर, वो अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर हाथ रखती थी मेंसेस के टाइम के ऊपर, और वो खून जो है वो पत्थर के ऊपर लगा देती थी और प्रार्थना करती थी कि हमें बच्चा हो जाए। ये कुछ सीरास के अंदर लिखा हुआ है, मेजर हदीस के अंदर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें मेजर हदीसों के अंदर ये पता है, सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर, कि वो नंगे तवाफ जरूर करते थे खाना काबा का, ठीक है। तो इसके ऊपर तो कोई शक नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। अगर मैं यहां पे ये कहूं, ठीक है, कि लोग जो हैं इस पत्थर के साथ अपनी प्राइवेट पार्ट्स को रब करते थे, ठीक है, अब सारे मुस्लिम क्या कहेंगे, रेफरेंस दे रेफरेंस दे रेफरेंस दे रेफरेंस दे, तूने ऐसा एग्जैक्टली। क्या किया, राइट। अब इतनी मेजर बात है कि अबू बकर ने कहा जाओ अल्लाह की चू को चाटो, ये कह रहा है। अच्छा इंग्लिश वाले इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं अब्यूज किया, गाली। उर्दू में भी लिखा है गाली दी, और एक जगह पर ट्रांसलेशन में सिर्फ उन्होंने अरबी की डाल दिया ट्रांसलेटिंग। उतना हाँ जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था उतना ही लिख के डाला है। हाँ अरबी की अरबी डाल दी, ट्रांसलेट ही नहीं किया। दिस इज द ओनली गाय जो आता है कहता है यार असल में उस टाइम पे लोग जो है ना यही कर रहे थे, तो भाई उसका रेफरेंस कहां से उठाया। एग्जैक्टली। इतना सा बात है, अगर ये दे दें तो ठीक है, नहीं तो टॉपिक चेंज करने के लिए मेरी स्ट्रीम में भी आके 10-15 मिनट जाया किए थे, यहाँ पे भी जाया कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसी के लिए चढ़ा हूँ, वरना मैंने नहीं आना था अभी। नहीं लेकिन सोचो ना, मतलब इस आदमी का, इस बच्चे का आर्ग्यूमेंट कितना नॉनसेंसिकल इलॉजिकल है कि भाई सिर्फ वो बोले, मतलब लोग करते थे इस वजह से बोले, इस हाँ वजह से मेरे को फिर इतनी गंदी मिसाल इनको देनी पड़ी, तो भी नहीं समझाए। हर मेरा मतलब साहिल मुझे नहीं पता कितने चैनल पे जा जाके सेम चीज बोलेगा। यानी अभी मेरे से 15 मिनट मार खा के भागा था। मैंने कहा था तू बैक स्टेज में रह, जब तेरे पास रेफरेंस होगा मैं तुझे ऐड कर लूंगा, तू प्राइवेट चैट में लिख दी। आज ये कितने दिनों बाद आया, यानी कि सैटरडे, ऑलमोस्ट 6 डेज के बाद आया, फिर रेफरेंस नहीं है और सेम बोंगी रिपीट कर रहा है। आई एम अमेज यार, फ्रॉम लाइक मुझे बाज़ अमेजमेंट होती है इन लोगों की बोंगियों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल।